Hello children. Today we are going to read chapter 4 in grammar, verbs. You all have already read about verbs. What is a verb? A verb, it's a word which shows some action. Every sentence has a verb. So a verb, it's a word which expresses an action or tells something about a person or a thing. Or we may say a verb is a word which says what a subject does, what is done to it, or what it is. So you can say that verbs are action words which tells us what the subject is doing or what the subject had done in the past, what the subject does, or what the subject is. Like you can say then that verbs are action words, or we can say verbs are also called doing words. So we can see some examples. Let us read some sentences are given here. Like Anil reads his lessons. So here in this sentence, Anil is the subject and the verb here is reads. The verb is reads. What Anil does? He reads. So this is the action that Anil does. So this is the verb. So verbs are action words or doing words, or it also tells what the subject is. And here you can see what Anil does. He reads his lessons. What he reads? His lessons. Now next sentence, his father lives in Dubai. So this sentence is about whom or about what? So we can say that this sentence it is about his father. So this is the subject, his father. And what his father does? So lives. So what the subject does, that is called the verb. So here lives is the verb. And the subject is his father. Then come to the next sentence. The little boy is smiling. So this sentence is about whom? So you can say that this sentence is about the little boy. So this the little boy is the subject and what the little boy does, what he is doing. The little boy is smiling. वो smile कर रहा है. तो वो क्या काम कर रहा है? He is smiling. So is smiling is the verb. The next sentence. I love mangoes. So this sentence is about whom? It is about I. So I is the subject. And what I am doing, what it tells about I. So it tells that I love mangoes. So what I am doing? Loving mangoes. हम क्या कर रहे हैं? Loving mangoes. So love is the verb here. Okay. Now in all the above sentences, these colored words tell us about their subjects. So these words are verbs. So they tell us like what the subject is doing or what the subject does. So that's why we can say that verbs are doing words, or we can also call them action words. Now say what you do. Say what do you do throughout the day. So if anyone will be ask you what you do throughout the day, so what will be your answer? First, I go to school in the morning. So here in this sentence, the subject is I because we are talking about I. So I is the subject and what the subject does, go to the school. So here काम क्या हो रहा है, क्या action हो रहा है, what I am doing, going to the school. So this go is the verb. Now next, I attend my classes. So what I am doing here,
I am attending the classes. I attend the classes. What I do, I attend my classes. So here the काम जो हो रहा है that is attend. So the word attend shows the action. So attend is the verb here. I play in the afternoon. So यहाँ पर काम क्या हो रहा है बेटा? Action क्या हो रहा है? Play. So play is the verb. That is the action done by I. So this is the verb here in this sentence, play. I sleep at night. So here the verb is जो action हो रहा है, काम हो रहा है, that is sleeping का काम हो रहा है, sleep. So sleep is the verb here. So hence all your actions are verbs. So सारे जो भी actions होते हैं they are all called verbs बोलते हैं. इसीलिए verbs को हम action words भी बोल सकते हैं. Or we can say that verb is a doing word. So yes, a verb is a word that says something about some person or thing. तो verb जो है वो action तो बताता ही है लेकिन वो हमें किसी person या किसी thing के बारे में भी बताता है. जैसे मैं बोलूँ कि I am a teacher तो मेरे बारे में बता रहे हैं है ना कि मैं एक टीचर हूँ. So here the verb is am. The word am is the verb in this sentence. If I tell the eggs are white तो यहाँ पर मैं eggs के बारे में बता रही हूँ कि वो eggs कैसे हैं. They are white. So यहाँ पर are is the verb here. Okay. So verbs have different categories. So let us discuss the categories. Two categories of verbs, transitive verbs and intransitive verbs. So let us discuss what is a transitive verb. So look at these sentences first. Some examples are given. We will discuss this first. First sentence, Shivani eats green mangoes. तो यहाँ पर जो है ये सेंटेंस किसके बारे में है? दिस सेंटेंस इज अबाउट शिवानी. ओके, सो दैट इज द सब्जेक्ट. सो शिवानी जो है यहाँ पर इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है. एंड व्हाट शिवानी डज, वो क्या कर रही है? शी ईट्स. एक्शन क्या कर रही है वो? ईटिंग का है ना. सो ईट्स इज द verb. Shivani does verb what? Eating. So eats is the verb. And what she eats, you get the answer. What she eats. When you ask the question to the verb से आपको question पूछना है what. So what Shivani eats. What she eats. So answer you get is green mango. So that is the object. Okay, उसको हम बोलते हैं object. Okay, जो answer मिलता है जब हम पूछते हैं verb से question what. तो हमें जो आंसर मिलता है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट. देन कम टू द सेकेंड सेंटेंस, रितु सिंग्स अ सॉन्ग. सो ये सेंटेंस किसके बारे में है? इट इज अबाउट रितु. सो रितु इज द सब्जेक्ट एंड व्हाट रितु डज, कौन सा एक्शन कर रही है? सिंग. सो सिंग्स इज द वर्ब. एंड व्हाट रितु सिंग्स, वो क्या गा रही है? अ सॉन्ग. सो दिस इज द ऑब्जेक्ट. नाउ नेक्स्ट, द टीचर गेव रितु अ प्राइज. सो हियर इन दिस सेंटेंस it is about the teacher. So this is the subject. The teacher is the subject and what is the action done by the teacher? Giving. जो काम कर रहे हैं कौन से वर्ड से पता चल रहा है कि कौन सा काम हो रहा है, कौन सा एक्शन हो रहा है? सो गेव वर्ड से पता चल रहा है ना कि टीचर ने प्राइज दिया. तो गेव वर्ड से पता चलता है कि टीचर ने कौन सा काम किया? गिविंग. ओके, गिविंग का काम किया. सो गेव इज द वर्ब. एंड व्हाट द टीचर गेव, क्या दिया टीचर ने? सो उसका आंसर मिलेगा अ प्राइज. ओके, सो दैट इज द object, a prize. The next, the farmer plowed the field. तो यहाँ पर ये सेंटेंस किसके बारे में है? It is about the farmer. So the farmer is the subject here.
एंड फार्मर क्या काम कर रहा है, कौन से वर्ड से पता लगता है कि फार्मर क्या एक्शन कर रहा है, क्या काम कर रहा है। सो दैट इज द वर्ड प्लाउड, मतलब खेत जोत रहा है वो अपना। सो प्लाउड वर्ड से पता लगता है कि फार्मर जो है प्लाउ कर रहा है फील्ड को। एंड अगर हम पूछे, अब वर्ब से क्वेश्चन पूछना है, व्हाट इज बीइंग प्लाउड, प्लाउ क्या कर रहा है फार्मर, so the answer you get is the field. So the field is the object. So इसमें आप देखोगे तो हर सेंटेंस में जो वर्ब है उसका एक ऑब्जेक्ट है जिसपे कि उसका इफेक्ट पड़ रहा है। ओके, जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस में आप देखोगे तो ईट्स, ईट्स का इफेक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है, ग्रीन मैंगोस पे। सिंग्स का इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, सॉन्ग पे। गेव का इफेक्ट प्राइस पे पड़ रहा है एंड प्लाउड का इफेक्ट पड़ रहा है फील्ड पे। सो ये सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जब वर्ब जो है जिसपे उसका एक्शन हो रहा है, जिसपे वर्ब अपना एक्शन कर रहा है, ओके, दैट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट। So now if you ask the questions to each sentence, what does Shivani eat, what does Ritu sing, what did the teacher give Ritu, what did the farmer plow, तो इसके आंसर you will get green mangoes, a song, a prize and the field. So these verbs in these sentences do not give complete meaning without their objects. अगर इनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, जैसे ग्रीन मैंगोस नहीं होता, अगर इसमें सेंटेंस में ऐसा होता शिवानी ईट्स, तो हमें ये नहीं पता चलता कि शिवानी क्या खा रही है। रितु सिंग्स खाली अगर होता तो हमें ये नहीं पता चलता कि रितु क्या गा रही है, वो सॉन्ग गा रही है, भजन गा रही है, वो हमें नहीं पता कि वो राइम गा रही है, कुछ भी हो सकता है। द टीचर गेव रितु अ प्राइज, द टीचर गेव अगर खाली हो तो हमें नहीं पता लगेगा कि टीचर ने क्या दिया, है ना। द फार्मर प्लाउड द फील्ड, अगर खाली द फार्मर प्लाउड तो उसने क्या प्लो किया, हमें क्लियर पता नहीं लगता है कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो। सो द वर्ब्स इन these sentences do not give complete meaning without their object, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता तो हमें इनका कंप्लीट मीनिंग पता नहीं चलता इन सेंटेंसेस में। सो दीज वर्ब्स आर ट्रांजिटिव वर्ब्स, क्योंकि इनमें जो है हमें पूरा मीनिंग पता चल रहा है, तो इसीलिए हम इनको ट्रांजिटिव बोलेंगे। अगर इनका मीनिंग नहीं पता चलता है, हमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है किसी सेंटेंस में, तो उसको हम बोलते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। ओके, तो पहले हम ट्रांजिटिव देख लेते हैं क्या है। अ वर्ब विच डिपेंड्स फॉर इट्स मीनिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब। तो इसमें हम क्या क्वेश्चन पूछेंगे वर्ब से, व्हाट। ओके, जब आपको कोई सेंटेंस मिले तो आप क्वेश्चन पूछोगे वर्ब से व्हाट, और अगर उसका आंसर मिलता है आपको तो इसका मतलब वो ट्रांजिटिव सेंटेंस होता है। ओके, नाउ कम टू इनट्रांजिटिव verbs. See, some examples are given here. रोहन weeps, मतलब रोहन रो रहा है। ओके, द प्ले बिगिंस नाउ, वो प्ले जो है, ड्रामा जो है, अभी बिगिन, अभी शुरू होने वाला है या शुरू हो चुका है अभी। द क्लाउन लाव्स, क्लाउन मतलब जो जोकर होता है सर्कस वगैरह में, वो हंस रहा है। ओके, द क्लाउन लाव्स। सो द वर्ब्स जो है इस सेंटेंस में आप देखोगे जो एक्शन हो रहा है, वीप्स, बिगिंस, लाव्स, तो दे डू नॉट डिपेंड ऑन एनी ऑब्जेक्ट। इनका मीनिंग हमें वैसे ही समझ में आ जाता है कि रोहन रो रहा है, हमें जरूरत नहीं है एक और ऑब्जेक्ट की। ओके, सो दीज वर्ब्स आर इनट्रांजिटिव वर्ब्स। तो इस टाइप के वर्ब्स जब आपको सेंटेंस में मिलेंगे जिनमें कि आपको मीनिंग उनका वैसे ही समझ में आ जाएगा, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, दे डू नॉट डिपेंड ऑन एनी ऑब्जेक्ट, सो दे आर कॉल्ड intransitive verbs. A verb which does not depend for its meaning on the object is called an intransitive verb. तो एक verb जो अपने meaning के लिए object पे depend नहीं होता है, it does not depend on the object, is called an intransitive verb. Intransitive verb cannot have its passive since it does not have any object to depend on.
So this we will discuss when we are doing the active and passive voice. So leave it now. Now there is an exercise, that is exercise A. First, identify the verbs in the following and write transitive or intransitive against their blanks. So you have to read the sentence and you have to find out whether it is a transitive or intransitive verb. So the first sentence, bring me a glass of fresh juice. So here the verb क्या है, action कौन सा, काम है, कौन से word से पता चल रहा है कि कौन सा काम हो रहा है, bring word से पता चल रहा है कि ये action हो रहा है bring. So bring what? If you ask the question to the verb से आपको question पूछना है bring what, तो हमें आंसर मिल रहा है a glass of fresh जूस. तो हमें क्या आंसर मिल रहा है इसका, ब्रिंग अगर हम पूछे तो अ ग्लास ऑफ फ्रेश जूस. तो इसमें हम क्या लिखेंगे, ये जिसका आंसर हमें मिल जाता है व्हाट क्वेश्चन करने पे, सो ये है ट्रांजिटिव वर्ब. देन कम टू द नेक्स्ट वन, अतुल वेंट टू द स्टेडियम. तो यहाँ पर जो है अतुल जो है सब्जेक्ट है, ये सेंटेंस अतुल के बारे में है. सो दिस इज द सब्जेक्ट और अतुल ने एक्शन क्या किया, वेंट, जाने का एक्शन हुआ है वेंट. वेंट वॉट, तो इसका हमें कोई आंसर नहीं मिल रहा है वेंट वॉट का, तो दैट मीन्स दिस इज एन इनट्रांजिटिव सेंटेंस. ओके. नेक्स्ट, द रॉबर्स लूटेड ऑल द कैश. रॉबर्स मतलब जो कि चोरी करते हैं, लुटेरे होते हैं. ओके, उन्होंने सारा कैश लूट लिया. सो हियर दिस सेंटेंस इज अबाउट whom, इट इज अबाउट द रॉबर्स. तो ये सब्जेक्ट है यहाँ पे रॉबर्स, और एक्शन क्या किया उन्होंने, लूटने का काम किया. सो लूटेड इज द वर्ब. एंड लूटेड व्हाट, सो इट इज ऑल द कैश. आंसर मिल रहा है हमें लूटेड व्हाट, ऑल द कैश. सो दिस इज द ऑब्जेक्ट. तो जब हमें व्हाट का आंसर मिलता है तो दैट मीन्स इट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब है. लूटेड यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है. My father came yesterday. So this sentence is about my father. तो action क्या हो रहा है, came. Okay, came. This shows the action. And what came, तो इससे हमें कुछ नहीं पता चलता है. There is no answer. So that means this is an intransitive verb. Came here is intransitive. They closed the gates. तो यहाँ पर जो है ये सेंटेंस किसके बारे में, दे के बारे में है. ओके. एंड व्हाट दे डिड, कौन सा एक्शन किया उन्होंने, क्लोजिंग का काम किया. क्लोज्ड व्हाट, द गेट. सो दिस इज द ऑब्जेक्ट हियर. तो यहाँ पर हमें व्हाट का आंसर मिला जब हमने वर्ब से पूछा क्लोज्ड व्हाट, द गेट. सो दिस इज ट्रांजिटिव. The old man slept peacefully. So this sentence is about the old man के बारे में है. And action here is slept. And what slept? So हमें कोई आंसर नहीं मिल रहा है ना. What the old man slept, नहीं है, कोई आंसर नहीं है. So that means this is intransitive. Children shouted with joy. So here this sentence is about children. Subject is children. And action, what the children did, shouted. Okay, so what the children shouted, there is no answer. So that means this is also intransitive. Next, who gave you this toy? So here the subject is who and the verb here is gave का काम किया उन्होंने, gave. And what they gave, this toy. So here you got the answer, what they gave, this toy. So this is transitive verb. Then come to the next one. Shivani has bought a new bicycle. So this sentence is about Shivani. And what the action, which word shows action, क्या किया शिवानी ने, साइकिल खरीदने का काम किया है ना. सो हैज बॉट, दिस इज द verb, has bought. And what Shivani bought,
a new bicycle. So this is the object जिस पे उसका इफेक्ट पड़ रहा है verb bought का. So this is transitive verb. Rahul wrote 2 letters. So this sentence is about Rahul के बारे में है. So this Rahul is the subject and what is the action done by Rahul? Rahul ने क्या किया? Wrote. So this is the verb and what Rahul wrote? 2 letters. So हमें आंसर मिल रहा है what Rahul wrote? 2 letters. So this is the object. So this is also transitive. Then come to auxiliary verbs. तो auxiliary verbs को हम helping verbs भी बोलते हैं. We can also tell them they are helping verbs. See, we will read some sentences now. I have read the Ramayana. My sister is coming. Arushi did not go to the party last night. So यहाँ पर जो आपको colored में words दिख रहे हैं have, is, didn't. So इससे क्या पता लगता है? हमें टाइम पता लगता है कि जैसे my sister is coming, तो is से हमें पता लगता है कि वो अभी आ रही है. I have read the Ramayana. मैं रामायणा पढ़ चुका हूँ. आरुषि डिडंट गो टू द पार्टी लास्ट नाइट. तो आरुषि पार्टी में नहीं गई. लास्ट नाइट जो पार्टी थी उसमें वो नहीं गई थी. तो इससे हमें जो है टेंस पता लगता है, टाइम पता लगता है. ओके, मेन वर्ब को वो हेल्प कर रहा है. जैसे मेन वर्ब क्या है, इनमें जो एक्शन दिखा रहा है हमें, जैसे इसमें फर्स्ट सेंटेंस में लेते हैं आई हैव रेड द रामायणा. तो मेन वर्ड जिससे हमें पता लगता है कि कौन सा काम हो रहा है या जो एक्शन बता रहा है हमें, वो है रीडिंग का काम हो रहा है ना, रेड. सो हियर रेड इज द मेन वर्ब. और हैव जो है इसको हेल्प कर रहा है रेड को हमें बताने के लिए कि वो रीडिंग का काम कब हुआ था. हमें टाइम पता लगता है कि वो हो चुका है, वो काम कंप्लीट हो गया है. माई सिस्टर इज कमिंग. तो यहाँ पर जो है मेन वर्ब जिससे हमें एक्शन पता लगता है कि मेरी सिस्टर क्या काम कर रही है, कमिंग. कमिंग वर्ड से पता लगता है कि वो क्या कर रही है, एक्शन कमिंग का. सो दिस इज द मेन वर्ब. और इज जो है बेटा ये खाली उसको हेल्प कर रहा है मेन वर्ब को. ओके, सो इज द हेल्पिंग वर्ब यू कैन से, और इट इज द ऑक्सिलियरी वर्ब भी बोलते हैं इनको. आरुषि डिडंट गो द पार्टी लास्ट नाइट. तो यहाँ पर मेन वर्ब जिससे एक्शन पता लगता है कौन सा काम हो रहा है वो है गो. गो से हमें पता लगता है एक्शन वर्ड है वो. ओके, जाने का काम. और डिडंट से हमें पता लगता है कि वो पार्टी में नहीं गई कल रात को. तो ये डिडंट जो है हेल्प कर रहा है मेन वर्ब गो को. ओके, सो डिडंट जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है. ऐसे यहाँ पर जो हैव है ये भी जो है एक हेल्पिंग वर्ब है जो कि हेल्प कर रहा है मेन वर्ब रीड को. ओके, सो दीज helping verbs are also called auxiliary verbs that help to form the tense. बताता है हमें, time बताता है main verb का. okay, so a verb that helps to form tense or an expression is called an auxiliary verb. तो auxiliaries बेटा जो होते हैं वो principal भी हो सकते हैं, model भी हो सकते हैं. so today we will discuss about principal auxiliaries क्या होते हैं. okay, so look at this example. Some sentences are given. I am a professor. तो इससे हमें क्या पता लगता है कि वो एक प्रोफेसर है. तो इससे हमें ये पता लगता है कि वो क्या है, मैं क्या हूँ, मैं एक प्रोफेसर हूँ. मिस्टर सूद इज अ सिंगर. तो इससे हमें सेंटेंस से क्या पता लगता है कि मिस्टर सूद क्या है, वो एक सिंगर है. ओके, रेनू एंड राखी आर टीचर्स. तो इसमें हमें रेनू एंड राखी के बारे में वो क्या कर रहे हैं नहीं बता रहा, लेकिन वो क्या है, रेनू एंड राखी क्या है, दे आर टीचर्स. अनिल वॉज हैप्पी. अनिल खुश था. लेकिन हमें क्या कर रहा है ये नहीं पता चल, लेकिन अनिल कैसा है, वो क्या है, अनिल वॉज हैप्पी, वो खुश था.
बट हिज फ्रेंड्स वर सैड, लेकिन उसके फ्रेंड्स सैड थे। ओके, तो इसमें जो वर्ड्स हैं, छोटे छोटे वर्ड्स आपको दिख रहे हैं जो कलर्ड में है, एम, इज, आर, वॉज, वर, ये सारे जो कलर्ड में लिखे हुए हैं, ये सारे वर्ड्स जो हैं टू बी, जिससे हमें पता लगता है कि वो क्या है। जैसे मैं बोलूँ आई एम अ टीचर, तो इससे पता लगता है कि मैं क्या हूँ, मैं एक टीचर हूँ। तो इससे एम से पता लगता है कि मैं एक टीचर हूँ। तो ये जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, इज, एम, आर, वॉस, वर, ये सारे जो हैं ये बताते हैं कि वो क्या है किसी के बारे में। तो ये भी वर्ब्स होते हैं, लेकिन इनको हम टू बी वर्ब्स बोलते हैं। ओके, ये जो वर्ब होता है बी, बी के फॉर्म से ये सारे, इज, एम, आर, बी मतलब कि वो चीज क्या है। ओके, तो वो इज, एम, आर, वॉस, वर, ये सारे जो हैं टू बी के फॉर्म्स होते हैं, इनको हम ऑक्सिलरी वर्ब्स बोलते हैं। ओके, नाउ हियर यू सी सम मोर ऑक्सिलरी वर्ब्स आर गिवन। गर्ल्स हैव कंप्लीटेड देयर प्रोजेक्ट्स, तो यहाँ पर जो है गर्ल्स, दिस सेंटेंस इज अबाउट गर्ल्स के बारे में है ये सेंटेंस। और एक्शन जिससे पता लगता है, एक्शन वर्ड क्या है, कंप्लीटेड। ओके, उन्होंने जो है क्या काम किया, कंप्लीट करने का काम किया है। गर्ल्स हैव कंप्लीटेड देयर प्रोजेक्ट्स, उन्होंने, गर्ल्स ने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है। श्रेया हैज येट टू कंप्लीट, तो यहाँ पर जो है ये सेंटेंस श्रेया के बारे में है, और ये काम कौन सा हो रहा है, कंप्लीट का। ओके, श्रेया हैज येट टू कंप्लीट। शी हैड स्टार्टेड अर्लियर, तो मतलब कि वो जो है, शी हैड स्टार्टेड अर्लियर, उसने पहले ही काम शुरू कर चुकी थी। वो, उसने जो है पहले से ही वो काम शुरू कर दिया था। तो ये जो है, मैं यहाँ पर एक्शन वर्ड क्या है, स्टार्टेड है। स्टार्टेड से पता लगता है कि उसने क्या किया था, स्टार्ट किया था। और ये जो कलर में आपको वर्ड्स दिख रहे हैं, ओके, जैसे कि यहाँ पर है हैव, ओके, और यहाँ पर है हैज, और इन द थर्ड सेंटेंस हैड। तो इससे क्या पता लगता है हमें कि वो काम जो है कब हुआ था। ओके, लाइक गर्ल्स हैव कंप्लीटेड, गर्ल्स ने अपना अपना काम कंप्लीट कर लिया है। श्रेया हैज येट टू कंप्लीट, श्रेया को अभी कंप्लीट करना बाकी है। शी हैड स्टार्टेड अर्लियर, वो काम शुरू कर चुकी थी पहले ही। तो ये जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं, हैज, हैव, हैड, ये सारे जो हैं हैव के ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। ओके, हैव के डिफरेंट फॉर्म्स है ये, हैज, हैव एंड हैड। द वर्ड्स इन कलर्ड लेटर्स आर हैव ऑक्सिलरी वर्ब्स, तो ये हैज, हैव, हैड जो है, इनको हम हैव ऑक्सिलरी वर्ब्स बोलते हैं। दे आर हैज, हैव एंड हैड। अब जो है वर्ब डू के भी कुछ ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, 4 ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं डू के, डू, डिड, डज, डन। ओके, तो इनके बारे में देख लेते हैं। उनमें नॉट लगा के भी बन सकता है, डू नॉट, डज नॉट, डिडंट। ओके, like you see some sentences are given, what do you do in the evening, तो यहाँ पर जो है do, okay, this is telling कि what do you do, इसमें टेंस पता लग रहा है कि तुम शाम को क्या करते हो। didn't you attend the function last evening, क्या तुमने लास्ट इवनिंग को फंक्शन अटेंड नहीं किया था। then So these verbs in colored letters in the above sentences are do auxiliary verbs. तो ये जो है do के auxiliary verbs होते हैं। They are do, does, did, done, etc. Okay, these all are called the auxiliary verbs of do. Then we have an exercise here. Fill in the blanks with to be verbs जो होते हैं is, am, are, was, were या will भी बोल सकते हैं। और have के क्या होते हैं, 3 होते हैं, 3 H होते हैं, has, have, had। और do के
डू, डिड, डज, डन। ओके, तो इन सब को हम यूज करके वी हैव टू कंप्लीट दिस पैराग्राफ। इंग्लिश डैश अ फॉरेन लैंग्वेज, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इंग्लिश इज अ फॉरेन लैंग्वेज। पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड डैश एन अट्रैक्शन टुवर्ड्स इंग्लिश, तो यहाँ पर हैव का यूज करेंगे, हैव एन अट्रैक्शन टुवर्ड्स इंग्लिश। जो सारी दुनिया में लोग हैं वो सब इंग्लिश सीखना चाहते हैं। What makes this language popular is its users, तो ये लैंग्वेज इंग्लिश जो है इतना पॉपुलर क्यों है, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते हैं। You can have your own language but that will not help in a foreign country, तो वैसे तो हमारे पास अपनी अपनी लैंग्वेज होती है, लेकिन ये हमारी जो लैंग्वेज है वो जब हम कहीं बाहर जाते हैं फॉरेन कंट्रीज में, उससे हमें हेल्प नहीं मिल सकती है। इंग्लिश जो है इट इज़ अ कॉमन लैंग्वेज, वो ऑलमोस्ट हर कंट्री में बोली जाती है, इसीलिए जो है आजकल लोग सब इंग्लिश सीखना चाहते हैं। So you can have your own language, but that will not help in a foreign country. English nowadays has become common. Okay, यहाँ पर आएगा has become common in most parts of the globe. You are, okay, यहाँ पर आएगा you are not supposed to be a master of the language. चाहे आप इस इंग्लिश के मास्टर ना बनो, बहुत अच्छी इंग्लिश ना बोलो, लेकिन कम से कम सीखो बोलना। ओके, यू शुड नो हाउ टू एक्सप्रेस, आपको कम से कम जो आप बोलना चाहते हो वो दूसरा समझ पाए उतनी इंग्लिश तो आनी ही चाहिए। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज योर लव फॉर द लैंग्वेज, और दूसरी इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि आपको अगर किसी लैंग्वेज से प्यार है आप तभी आप उसको सीख पाओगे। लैंग्वेज डज नॉट रिक्वायर बाउंड्रीज, तो लैंग्वेज की बेटा कोई बाउंड्रीज नहीं होती है। ओके, वो कहीं भी आप जा कहीं भी ट्रैवल कर सकती है। ओके, लैंग्वेज। देन कम टू द नेक्स्ट वन, exercise C. In the following sentences, fill in the blanks with the correct form of auxiliary verbs shown in bracket. तो ब्रैकेट में कुछ ऑक्सिलरी वर्ब्स लिखे हुए हैं, हमें उनका करेक्ट फॉर्म यूज करना है। जैसे हैव लिखा हुआ है तो हो सकता है हैज आई, हैव आई, हैड आई। ओके, अगर डू लिखा है तो हो सकता है डू, डिड, डज, डन। ओके, कुछ भी हो सकता है। और अगर बी लिखा है तो इट कैन बी इज, एम, आर, वॉज, वर, विल। ओके, कुछ भी आ सकता है। तो आपको देखना है कौन सा करेक्ट फॉर्म, यू हैव टू सी अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। Like you see the first one, the patient dash died before the doctor came. तो यहाँ पर जो वर्ड यूज किया गया बेटा, जो वर्ब आप देखोगे तो डाइड मतलब कि हो चुका है वो काम, है ना। तो इसीलिए हम जो है हैज, हैव, हैड। ओके, इसका पास्ट टेंस जो होता है हैड होता है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे हैड। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। नेक्स्ट, डैश नॉट ऑल चार्म्स फ्लाई विथ द पैसेज ऑफ टाइम, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंपल। ओके, डू, डू नॉट ऑल चार्म्स फ्लाई विथ द पैसेज ऑफ टाइम, मतलब कि जो भी आपकी, जैसे आप मान लो किसी की स्किन आज बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा हो सकता है उसकी भी स्किन जो है अभी जितनी सॉफ्ट है वो उतनी सॉफ्ट ना रहे, उस पर झुर्रियाँ पड़ जाएंगी। पैसेज ऑफ टाइम के साथ जो है आपके चार्म्स जो भी है, जो भी अच्छी चीजें, सुंदरता जो है वो धीरे धीरे ढलने लग जाते हैं। यही मीनिंग है सेंटेंस का। ओके, डू नॉट ऑल चार्म्स fly with the passage of time. Next, I dash reading in this school for 4 years. तो यहाँ पर have you का फॉर्म आप हमें यूज करना है, तो इट कैन बी has, have या had। तो इसमें से आप देखोगे तो अगर has, have, had में से तीनों कोई भी फिट नहीं बैठ रहा है ना,
ना तो आई हैज रीडिंग, ना आई हैव रीडिंग या आई हैड रीडिंग। तो हमें क्या करना है, एक और इसमें यूज करना है फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, लाइक आई हैव बीन रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर 4 years। ओके, हैव बीन लगाएंगे हम यहाँ पर। नेक्स्ट, पॉलिटिक्स डैश द लास्ट रिजॉर्ट ऑफ एन एम्बिशियस पर्सन। एम्बिशियस मतलब जो बहुत ही ज़्यादा सोचता है कि मैं क्या बनूंगा। ओके, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है, बहुत बड़े बड़े सपने देखता है। ओके, तो उसको हम बोलते हैं एम्बिशियस पर्सन। सो पॉलिटिक्स बी का फॉर्म यूज करना है, तो पॉलिटिक्स इज आएगा। पॉलिटिक्स इज द लास्ट रिजॉर्ट ऑफ एन एम्बिशियस पर्सन। नेक्स्ट, डैश यू हैव एनी डिफिकल्टी इन फाइंडिंग माई हाउस। तो इसमें क्या आएगा बेटा, डिड यू हैव एनी डिफिकल्टी, डू का फॉर्म यूज करना है हमें और क्वेश्चन है ये। ओके, तो डिड आएगा। डिड यू हैव एनी डिफिकल्टी इन फाइंडिंग माई हाउस। ओके, क्योंकि पास्ट टेंस में हो रहा है ये, तो इसीलिए डिड बोलेंगे हम। नेक्स्ट, डैश योर मदर सेंट यू स्वीट्स एवरी मंथ। तो यहाँ पर जो है क्या बोल रहे हैं, आपकी आपकी मम्मी पूरे एवरी मंथ आपके लिए स्वीट्स भेजती है। एक्चुअली यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा एट द एंड, यहाँ पर फुल स्टॉप दिया हुआ है। ओके, यू हैव टू पुट अ क्वेश्चन मार्क आएगा यहाँ पर। ओके, सो सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा, नॉट हियर इन द प्रीवियस, इन सेंटेंस 6। तो यहाँ पे आएगा डज योर मदर सेंड यू स्वीट्स एवरी मंथ। ओके, यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है, इंस्टेड ऑफ फुल स्टॉप को काट देना एंड पुट अ क्वेश्चन मार्क हियर। डज योर मदर सेंड यू स्वीट्स एवरी मंथ। ओके, जो डू डज डिड से शुरू होंगे तो वो क्वेश्चन होते हैं। Next, my father dash read all the stories of Leo Tolstoy। लियो टॉल्स्टॉय बेटा एक राइटर है और इसमें हमें हैव का फॉर्म यूज करना है। सो माई फादर हैज आएगा। माई फादर हैज रेड ऑल द स्टोरीज ऑफ लियो टॉल्स्टॉय, क्योंकि माई फादर बेटा सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ हैज लगता है। ओके, हैव जो है प्लूरल के साथ लगता है अगर एक से ज्यादा होते हैं। ओके, जैसे माई फादर एंड मदर अगर होता तो दो पर्सन हो गए तो तब हम हैव लगाते हैं। माई फादर एंड मदर हैव रेड ऑल द स्टोरीज ऑफ लियो टॉल्स्टॉय, लेकिन यहाँ पर सिंगुलर है माई फादर, तो इसीलिए हम हैव लगाएंगे। माई फादर सॉरी हैज, माई फादर हैज रेड ऑल द स्टोरीज ऑफ लियो टॉल्स्टॉय। द नेक्स्ट, रश्मि विद ऑल हर फ्रेंड्स डैश देयर। सो हमें यहाँ पर बी का फॉर्म यूज करना है, तो इसमें इज, एम, आर, वॉज, वर, विल कुछ भी। सो वी विल यूज हियर रश्मि विद ऑल हर फ्रेंड्स is there। okay, next, all that he said dash true। तो यहाँ पर भी जो है प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे, is true, be का फॉर्म all that he said is true। then come to the next one, last one, number 10, dash you done your homework। तो यहाँ पर have का फॉर्म यूज करना है और क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा, have you done your homework। okay, then come to exercise D, pick the correct alternative that suits in the sentences below। throwing stones dash forbidden। so throwing stones is forbidden आएगा। ओके, forbidden मतलब निषेध, मना किया हुआ है। ओके, आपको ये काम नहीं करना है, forbidden। नेक्स्ट, चिकन पॉक्स डैश अ सीरियस डिसीज इन द पास्ट। तो चिकन पॉक्स वॉज आएगा या चिकन पॉक्स वर, तो यहाँ पर आएगा चिकन पॉक्स वॉज। ओके, चिकन पॉक्स वॉज अ सीरियस डिजीज इन द past। Next, who dash seen the wind has, who has seen the wind। it dash these students who started shouting slogans। so it is, it के साथ is लगेगा, it is these students
who started shouting slogans. Next, the Canterbury Tales. This is the name of some सीरियल वगैरह जो आते हैं, जैसे डक टेल्स हो गया, जो मिक्की माउस वाले डोनाल्ड डक वाले सीरियल्स आते हैं, जैसे उसका कोई सीरीज है. ओके, द कैंटरबरी टेल्स डैश फुल ऑफ इंटरेस्टिंग एपिसोड्स. तो यहाँ पर जो है कैंटरबरी टेल्स एक सीरियल का नाम है. ओके, तो यहाँ पर इज आएगा. द कैंटरबरी टेल्स इज फुल ऑफ इंटरेस्टिंग एपिसोड्स. All work and no play dash Robin a dull boy. So यहाँ पर आएगा makes. All work and no play makes Robin a dull boy. Okay. खाली काम करता रहेगा वो, है ना, वर्क एंड नो प्ले. तो उससे क्या है कि वो डल हो जाएगा, है ना, वो इतना एक्टिव नहीं रहेगा. द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी. तो यहाँ पर दो पर्सन है. अगर दो बार दोनों के साथ द लगाया गया है, प्रिंसिपल के साथ भी और सेक्रेटरी के साथ भी, तो इसका मतलब ये टू पर्सन्स है. द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी डैश कमिंग टू एड्रेस द स्टूडेंट्स. तो यहाँ पर दो हैं तो हम क्या यूज करेंगे, आर. ओके, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी आर कमिंग टू एड्रेस द स्टूडेंट्स. नो न्यूज डैश गुड न्यूज. तो यहाँ पर आएगा न्यूज के बारे में ये. सो नो न्यूज इज गुड न्यूज. न्यूज जो है बेटा कभी भी प्लूरल नहीं होता, इट इज ऑलवेज सिंगुलर ओनली. इजी आता है इसमें. ओके, नाइदर रवि नॉर हिज फ्रेंड्स डैश कम. तो यहाँ पर ना तो रवि और ना ही उसके फ्रेंड्स आए. ओके, सो नाइदर रवि नॉर हिज फ्रेंड्स हैव कम आएगा. ओके, क्योंकि फ्रेंड्स है बेटा प्लूरल है. हैज जो है एक के साथ यूज होता है और हैव एक से ज्यादा के साथ. तो फ्रेंड्स है यहाँ पर, तो इसीलिए हैव आएगा. नाइदर रवि नॉर हिज फ्रेंड्स हैव कम. 2 weeks in winter dash the normal vacation period. तो 2 weeks in winter is the normal vacation period. तो विंटर में 2 weeks जो है नॉर्मली हमें वेकेशन के लिए मिल जाते हैं इतना टाइम. ओके, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन. वी विल डिस्कस the remaining chapter in the next class. We will continue with the next topic. Thank you.